Hello students, welcome in our geography class. Today we are going to continue our 8th chapter primary application. Our today's topic is lumbering. Students, lumbering is one of the major primary occupation of man, and in lumbering it includes cutting of wood from forest, making logs and carrying or transport them to saw mills. क्या होता है lumbering? पेड़ों को काटना, जंगल के पेड़ों को काटना, फिर उनके लॉग बना करके और उनका ट्रांसपोर्टेशन करना। कहाँ पर? इंडस्ट्रियल एरिया में। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल एरिया में इनको प्रोसेस करके इफ द वुड्स आर हार्ड देन इट कन्वर्टेड इनटू फर्नीचर, एंड इफ द वुड्स आर सॉफ्ट देन सॉफ्ट वुड कन्वर्टेड इनटू पल्प एंड देन इनटू पेपर। सो in the earlier time the wood cutting for fuel, the requirement of wood cutting is only fuel, but nowadays the requirement is changed. Today it is used as a raw material in many industries, in various kinds of industry like paper, furniture, etc. Students, the lumbering is found at the primary level in tropical region. अगर हम देखें तो जो भी ट्रॉपिकल एरियाज हैं, ट्रॉपिकल रीजन से कितने, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाले इलाके, राइट। इन एरियाज में वुड कटिंग, कैप्रिकॉर्न वुड कटिंग जो है वो प्राइमरी लेवल पे होता है, यानी कि ह्यूमन अपने ही औजारों से जंगल काटता है और उसे बेचता है। कमर्शलाइजेशन नहीं है अभी इतना, लेकिन जो ट्रॉपिकल ट्रीज हैं लाइक साल, चीक, महागोनी, सैंडलवुड, रोजवुड, इनकी डिमांड बहुत है और ये काफी हार्ड वुड है जो कि बेसिकली टिम्बर बनाने के काम आता है, एंड लेटर ऑन इट्स कन्वर्टेड इनटू फर्नीचर। As in commercial purposes, the lumbering is practiced mainly in the temperate coniferous forest. Commercial तौर पर lumbering जो है वो temperate coniferous forest में होता है। Temperate यानी कि the area between 30 degree to 60 degree latitudinal extent. And these forests have large number of trees. कॉनिफेरस फॉरेस्ट है, इसका मतलब इनकी वुड्स जो है, इनकी लकड़ियां जो है काफी सॉफ्ट होती हैं, एंड दिस सॉफ्ट वुड इज यूज्ड टू मेक पेपर। लाइक these forests have large number of trees of the same kind and multiplicity. Trees cutting and logging is done mechanically. Mode of transportation have also developed considerably in these regions. And therefore wood is softwood, which is used in making pulp, paper and packing material. कॉनिफेरस फॉरेस्ट के जो वुड हैं वो नरम लकड़ी वाले होते हैं जिनका इस्तेमाल पेपर बनाने के लिए किया जाता है। पेड़ों की कटाई से लेकर के लॉगिंग तक का सारा काम मशीनरी होता है और वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को यूज किया जाता है। काफी डेवलप्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज होता है, एंड दिस काइंड ऑफ सिस्टम इज बेसिकली प्रैक्टिस्ड बाय द टेम्परेट रीजन लाइक कनाडा, नॉर्वे, फिनलैंड, यूएसए etc. Nowadays the wood are very much demanding. आज लगातार वुड्स की डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। So forests start cutting down very rashly in the whole world, and forest area is decreasing swiftly. Here I tell you about that. The forest is very much required for human survival because some of the direct or indirect sources are depend on forest. Indirect sources like oxygen, climatic balance. This entire things are depends on forest. और अगर हम इतनी जल्दी तेजी से फॉरेस्ट को कट करेंगे तो एक समय आ जाएगा कि हमारे पास ये डिमांड को पूरा करने का कोई स्कोप नहीं बचेगा।
वैसे भी 33% एरिया रिक्वायर्ड है फॉरेस्ट कवर होना, अगर बैलेंस चाहिए थी। और अगर 33% से डिक्रीजिंग है फॉरेस्ट एरिया, तो फिर नेचुरल बैलेंस जो है वो काफी इम्बैलेंस हो जाता है। एंड ड्यू टू द इम्बैलेंस, soil erosion increasing, fertility of soil is decreasing, flood are occurring in the rivers due to soil erosion, and lots of environmental disbalance increase. Got it? Hope you understand the term. Now let's discuss about the mining activity. Mining, extraction of minerals from the area, and the area which is known for the extracting activity, that particular area is known as mining area. So mining activity develops only at the places where minerals wealth is found, right? Mining सिर्फ वही होगी जहाँ पर minerals wealth होंगी, यानी कि जहाँ पर availability होगी mineral की वहाँ mining होगी, और जहाँ नहीं होगी वहाँ mining नहीं होगा. Mining work means extraction of minerals from deep inside the earth surface. Students, the great disparity is found in global distribution of minerals. Minerals के distribution में, global distribution में बहुत सारी disparity है. It means the minerals are not equally distributed on the land area. It's very much unequally distributed. Some of the areas having the high amount of mineral deposition, and some of the area are not having much mineral deposition. And why so? Because of the differentiation in the physiography. These are known by their physical and chemical properties. Minerals are natural chemical element of compound. Mineral क्या है? एक natural और chemical element है, या फिर compound है, और minerals को उनके physical और chemical properties के according differentiate कर सकते हैं. The places where minerals are extracted are called mines. जिन places से minerals को extract करते हैं बेटा, उस place को कहते हैं mines. Now let us discuss about the history of human development. Human का mineral से connection बहुत पुराना है. ऐसा नहीं कि हमने अभी हाल फिलहाल सीखा है. Even after changing the occupation from food gathering to food producing, humans start getting lots of changes, start inventing several things. Like for production, he required different kind of tools and equipment, and for making tools and equipment, he start utilizing the rock particles. So later he start discover various kinds of compound, and the compounds are given by understanding by several names. So according to the era, according to the period, whatever the substances are used that particular period are known by that particular element. Human ने discovery की minerals की, ये discovery उसके production के बाद में शुरू हुई जब वो food producer बना, क्योंकि उसे requirement था equipment का, tools का. तो उसने क्या किया, जो भी रॉक पार्टिकल्स थे उनसे टूल्स बनाना शुरू किया. धीरे धीरे इन मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन होता गया, और जिस एज में जो मिनरल ज्यादा एक्सट्रैक्ट हुए उस पर्टिकुलर एज को वही नाम दिया गया. लाइक कॉपर एज, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज एक्सेट्रा. ये तब की बात कर रहे हैं हम जब पर्टिकुलर एक समय में एक ही तरह का मिनरल यूज होता था, पर अब ह्यूमन बहुत डेवलप हो चुका है. Now a human is modern human, and he start utilizing every kind of material which is present in the earth surface or interior of the earth. आज ह्यूमन इतना ज्यादा एडवांस हो गया है कि वो किसी पर्टिकुलर एक या दो तरीके के मिनरल पर जितना ऑब्टेन करता है, जितना भी डिस्कवर करता है, उन सबको यूटिलाइज करना सीख चुका है, या जानता है कि किसको कहाँ यूटिलाइज करना है. और ये सब शुरू हुआ कब? 18th सेंचुरी से, जब ह्यूमन ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन
गेन किया। And nowadays the importance of minerals are growing continuously. Today the parameter of any countries of development shown by the minerals utilization. आज अगर हम ये पता करें कि कौन सा कंट्री कितना सिविलाइज्ड है, कौन सा कंट्री कितना डेवलप है, तो इन सबका पैरामीटर अब हो गया है कंजप्शन मिनरल का। यानी कि जो कंट्री जितना ज़्यादा मिनरल कंज्यूम करता है, इसका मतलब वो कंट्री उतना ही ज़्यादा सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व है और या फिर टर्शियरी सेक्टर वर्क भी कर रहा है। और दिस इज द सिम्पटम, दिस इज द पैरामीटर shows that how much the country is developed, right? It shows the wealth of the country. Nowadays, a major mineral called iron, it is very much extracted and it is very much useful. And except iron, some of the other elements, some of the other minerals like coal, petroleum, they are the basis of energy and they are also using in a very high ratio. Minerals are classified into metallic, non-metallic, ferrous, non-ferrous, like that. ठीक है, according to the chemical composition they are classified. किस तरीके के मटेरियल, किस तरीके का केमिकल कंपोजिशन है, किस चीजों से बने हैं, इन कंपोजिशन के अकॉर्डिंग ही हम मिनरल्स को क्लासिफाई कर लेते हैं। Many ferrous and non-ferrous metals are required nowadays for the industrial development of any country. Now let us discuss about the factors influencing mining activity. बेटा माइनिंग को एक्सट्रैक्ट करने से पहले कुछ बातों पर बहुत ही गहराई से ध्यान देना होता है, क्योंकि ह्यूमन का फिजिकल कंडीशन जो है और ह्यूमन खुद, एक एनवायरनमेंट का फिजिकल कंडीशन और ह्यूमन खुद बहुत सारी बातों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। So here the factors influencing mining activities, and basically two kind of factors are responsible for the mining activity. One is physical condition and another one is human condition. Physical condition में basically हम लोग location of mineral deposition, quality of mineral, quantity, type, solvency and proximity to market, इन बातों को ध्यान में रखें कि मिनरल कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, कहाँ से ऑब्टेन हो रहे हैं, क्वालिटी क्या है मिनरल की, कितनी क्वांटिटी में मिल रहे हैं, टाइप कैसा है, सॉल्वेंसी क्या है, किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाए और उसका डिमांड यानी कि नियर बाय मार्केट या मार्केट तक उसकी पहुंच कैसी है। ये सारे फैक्टर्स आते हैं फिजिकल कंडीशन में। नाउ द ह्यूमन कंडीशन, ह्यूमन कंडीशंस मेनली इंक्लूडेड द डिमांड ऑफ मिनरल, ट्रांसपोर्टेशन facility, capital, labor, level of technological development and government policy. These are some of the human conditions. मिनरल तभी एक्सट्रैक्ट होंगे जब उस मिनरल की हाई डिमांड होगी। मिनरल्स तभी एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे जब एक्सट्रैक्शन साइट से जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहां तक का ट्रांसपोर्टेशन easy to reach and cheaper मोड होगा। एक्सट्रैक्ट तभी होगा जब लेबर इजीली और चीपर लेबर अवेलेबल होगी। साथ ही टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का भी ध्यान रखा जाएगा एक्सट्रैक्शन के समय। एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, इफ गवर्नमेंट सपोर्टेड द एक्सट्रैक्शन देन ओनली द एक्सट्रैक्शन इज डन. So these are some of the features, these are some of the factors which are responsible for the mining activity. Now let us discuss about the characteristics of mineral. Minerals की characteristic क्या होती है? पहली characteristic, their distribution over the earth is uneven. They are unevenly distributed over the earth. Minerals एक साथ नहीं मिलते, बल्कि different इलाके में different composition में minerals मिलते हैं। Most minerals are limited and non-renewable. बहुत सारे मिनरल्स जो हैं बहुत कम हैं और इनको रिन्यू भी नहीं किया जा सकता।
लीनियर क्यों नहीं? मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, वापस से तोड़ करके नहीं बन सकते हैं। यहाँ पर नॉन रिन्यूएबल इसलिए कहा है क्योंकि इनको दोबारा से नेचुरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इनको बनने का एक लंबा प्रोसेस है, युगों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं। इस वजह से कहा जा रहा है कि रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है। Most of the minerals are hidden in earth interior and their survey and extraction requires huge capital. हमारे अर्थ के इंटीरियर में मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं और उन बहुत ज़्यादा मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, लेबर चाहिए और एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, राइट? Due to continuous mining, mines are becoming more expensive. लगातार माइनिंग की वजह से माइनिंग जो है, माइंस जो है काफी एक्सपेंसिव हो गई क्योंकि उनका एक्सट्रैक्शन ज्यादा हो गया एंड नाउ दे आर अनइकोनॉमिकल डिमांड, और धीरे धीरे अनइकोनॉमिकल होती जा रही है क्योंकि जो डिपोजिशन था वो खत्म होता जा रहा है। नो कंट्री सेल्फ सफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स, कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं है मिनरल के प्रोडक्शन में, यानी कि हर कंट्री में कुछ स्पेशल मिनरल्स हैं और कईयों में नहीं है क्योंकि इसका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। द एक्सट्रैक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मिनरल इज बेस्ड अपॉन मार्केट एंड डिमांड। कहाँ एक्सट्रैक्शन किया जाए, कितना एक्सट्रैक्शन किया जाए, यूटिलाइजेशन कैसा होगा, ये सब किस पर डिपेंड करता है? मार्केट पर और डिमांड पर। मार्केट नियर बाय है नहीं और डिमांड कितनी है। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। नाउ लेट अस क्लासिफाई द मिनरल्स। Students, more than 1600 minerals are found in the earth. आज ह्यूमन इतना कैपेबल हो गया है, इतना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर लिया है कि अब ह्यूमन डिफरेंशिएट कर लेता है मिनरल्स को, और इन डिफरेंशिएशन के बाद में अब तक 1600 मिनरल्स का पता लगाया जा चुका है अर्थ के क्रस्ट पर। 200 मिनरल्स आउट ऑफ दीज आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूज, और 1600 मिनरल्स में से यूज कितना कर रहे हैं? 200 मिनरल्स इंडस्ट्रियल यूज में, एंड अबाउट 80 मिनरल्स आर कंसिडर्ड एसेंशियल, और इसमें से भी 80 मिनरल्स जो हैं आउट ऑफ 200 काफी जरूरी हो गए हैं। किसके लिए? किसके लिए? इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के लिए, राइट? नाउ मिनरल्स कैन बी मेनली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज एंड these 3 categories are metallic, non-metallic and energy minerals. Here a table given for the classification. See, metallic minerals. Metallic minerals again classified into 2 categories: iron metallic and non-iron metallic. यानी कि फेरस कंपोजिशन वाले और नॉन फेरस कंपोजिशन वाले। फेरस में आयरन, निकल, मैग्नीशियम, नॉन फेरस में कॉपर, लीड, जिंक एंड एल्यूमिनियम। नॉन मेटलिक कंस्ट्रक्शन मिनरल्स जिनमें मेटल्स नहीं होते हैं, या फिर केमिकल मिनरल्स या ज्वेल्स, इसे हम लोग प्रेशियस मिनरल्स भी कहते हैं। कंस्ट्रक्शन में लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट। केमिकल में सॉल्ट, माइका, जिप्सम, और ज्वेल्स में गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम को कंसीडर किया जाता है। इन दो मेटलिक और नॉन मेटलिक मिनरल्स के अलावा हमारे पास कुछ एनर्जी मिनरल्स भी हैं जिनका यूज एनर्जी प्रोडक्शन में होता है, बिजली बनाने के लिए या फिर अदर तरीके से एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए किया जाता है। कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस इसके गुड एग्जाम्पल है। अंडरस्टूड? अब ये मिनरल्स जो है वो एक्सट्रैक्ट कहाँ से होते हैं, ऑब्टेन्ड कहाँ पर होते हैं? तो जरा हम बात कर लें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स की। बेटा ये मिनरल जो है अदर डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक मटेरियल्स में ऑब्टेन्ड होते हैं। सो मिनरल्स आर बेसिकली एसोसिएटेड टू रॉक्स and rocks are mainly classified under 3 categories, and these 3 categories are igneous, metamorphic and sedimentary. Basically the igneous rocks are the primary rocks. It is also called parent rock. यानी कि सिर्फ एक यही रॉक है जिसका फॉर्मेशन हुआ है, और बाकी की जो 2 रॉक्स हैं सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। सेडिमेंट्री जो है इरोजनल, विदरिंग एंड डिपोजिशनल एक्टिविटी, अगर हम इनको एक साथ बोलें तो डेनुडेशन प्रोसेस का परिणाम, इट इज द रिजल्ट ऑफ डेनुडेशन। Whereas metamorphic rocks are those rocks which is
occur due to the change in physical and chemical property of igneous and sedimentary. जब sedimentary या फिर igneous rocks के physical, chemical या फिर biological changes अगर होते हैं तब एक नई रॉक ऑब्टेन होती है और इस नई रॉक का नाम है मेटामॉर्फिक रॉक। अंडरस्टूड? तो ये हैं तीन तरीके की रॉक। इग्नियस रॉक्स कैसे बनती है? लावा डिपोजिशन से, वोल्केनिक इरप्शन से। सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती है? जब इग्नियस या मेटामॉर्फिक ये इरोड होती है, विदर होती है, डिपॉजिट होती है तो एक नया रॉक बनाती है जिसे सेडिमेंट्री, सेडिमेंटेशन से बनी है इसलिए सेडिमेंट्री। और मेटामॉर्फिक जब इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक के केमिकल, फिजिकल या बायोलॉजिकल प्रोसेस में चेंजेस अगर होते हैं तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स ऑब्टेन होती हैं। अंडरस्टूड? सो हियर द एग्जांपल्स आर गिवन: gold, silver, copper, zinc, lead, magnesium, mica, sulfur, etc. These minerals are found in igneous rocks. Igneous rocks में ये सारे minerals ऑब्टेन होते हैं, सारे minerals होते हैं। Whereas the graphite, diamond, marble, etc. they are found in metamorphic. Graphite, diamond और marble जो है ये मेटामॉर्फिक है, यानी कि igneous या sedimentary rock के फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी के चेंज होने से बने हैं। डायमंड किससे बनता है? कोल के कंप्रेशन पर। ठीक है? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, रॉक सल्फेट, रॉक फॉस्फेट, पोटाश, salt, they all are found in the sedimentary rock. So these are the example of sedimentary. Here a figure shows the mineral producing countries of the world. कि कौन से कंट्री में कितना मिनरल प्रोड्यूस होता है, ग्लोबल प्रोडक्शन दिखा रखा है यहाँ में। यूएसए में सारे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है 34.10%, रशिया 10.50, इंग्लैंड 10.50, देन जर्मनी 5.22, वेनेजुएला 5, कनाडा 2.93, फ्रांस 2.61, कुवैत 2.31%, Saudi Arabia 2.27%, Poland 2.01%, India 1.03%, and others 22.43%. And these entire considered as 100%. Understood? So students, the countries of developed economy are reducing mining, processing and refining work as labor expense has increased. आजकल जो डेवलप्ड इकोनॉमी है इन्होंने धीरे धीरे माइनिंग, प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग वर्क में एक्सपेंसेस के कारण काम कम कर दिया है, रिड्यूसिंग कर दिया है काम, क्योंकि लगातार लेबर भी महंगे होते जा रहे हैं, उनका खर्चा बढ़ता जा रहा है। जबकि अगर हम डेवलप्ड कंट्री की कंपैरिजन में डेवलपिंग की बात करें, सो डेवलपिंग कंट्रीज आर गिविंग मोर प्रेफरेंस टू माइनिंग एक्टिविटी टू मेंटेन द हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ देयर सिटीजन। डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो माइनिंग, एक्सट्रैक्टिंग, प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग इन वर्क्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि वो अपने लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको मेंटेन कर सके, राइट? और साथ ही क्योंकि डेवलपिंग नेशंस में पॉपुलेशन ज्यादा है तो लेबर फोर्स का भी अच्छे से यूटिलाइजेशन हो सके, इस वजह से भी डेवलपिंग कंट्रीज में एक्सट्रैक्शन एक्टिविटीज ज्यादा हो रही है। Many countries of Africa, some countries of South America and Asia derive around 50% of their income from mining activity. अफ्रीका, साउथ अमेरिका और एशिया का 50% इनकम जो है वो इन्हीं माइनिंग एक्टिविटी से ऑब्टेन होता है। So hope you guys understand the entire term very well. Mining, lumbering, and entire the terms, whatever we study in this chapter. So, read once again this chapter for getting a better understanding. Till then, thank you and have a nice day.